Good morning. I'm Dr. Sanjay Jain, Associate Professor in Mathematics at SPC Government College, Ajmer. Today, I'm taking the last lecture of inventory theory, in which I have taken the last most generalized probabilistic inventory model. Before that, we have taken many lectures on inventory theory, in which we have studied deterministic model, with shortage and without shortage model. Then we start probabilistic model and studied the classification of probabilistic model. First two probabilistic inventory model we have already discussed. Today we are taking other two and last in probabilistic inventory model, which we discuss here as per syllabus of BSc Honors Part 2nd classes. Here we have seen already this classification of inventory theory, in which we have classified probabilistic model in two categories: single period model and uniform demand model. Okay, single period model is again classified in two way, for discrete R and continuous R, which we studied in the last lecture. Today we are discussing uniform demand model, both fourth A and fourth B. Both the model, in both model fourth A and fourth B, one model, that is fourth A, in which demand R is discrete, and in fourth B demand R is continuous. That is the main difference between fourth A and fourth B model. Both model we are discussing here. So very first we are taking fourth A model. As earlier we are seeing, we just taking some assumptions for the models. Here we are taking, these are the basic assumption for the fourth A model, that is single period model with uniform demand, in which reorder time t is fixed. Z is the stock level at the beginning. The demand rate R in a period T is uniform demand. PR is the probability of requiring R unit in time T. Production is instantaneous. C1 is holding cost and C2 is shortage cost. In probabilistic model, we are done nothing having the C3, that is setup cost. So C3 cost is not considering. That's why it is also called no setup model. So these are the basic assumptions for fourth A model. How to derive EOQ for that model we are seeing in this. As per our earlier models, we already seen that always we are doing two part of the inventory model when R is less than Z or R is greater than Z. So here पहली स्थिति में हम जब R लेस देन इक्वल टू Z है तो डायग्राम ले रहे हैं. इनिशियल लेवल पे ओरिजिन से हमें Z OA, दैट इज Z, इन्वेंट्री अवेलेबल है. T समय पश्चात सेल आउट साथ साथ है. बिंदु B पर हम पहुंचते हैं. बिंदु B पर T में से जो सामान कुछ बिक जाता है तो रिमेनिंग रह जाएगा हमारे पास Z माइनस R, बिकॉज OA इज Z. जो सामान
सेल हुआ दैट इज़ आर, और जो बचा हुआ होगा वो कितना होगा, जेड माइनस आर, दैट इज सी बी इज जेड माइनस आर. So this is an model in which no shortage, only holding cost is considering r less than equal to z. But in that case, this is a diagram to understand us. Now what we are doing in this, इस स्थिति में हमें z माइनस आर, टी साइकिल, ये सब हमें डायग्राम से क्लियर है. यहाँ पर शॉर्टेज नहीं है इसलिए C2 नहीं आएगा. सेटअप मॉडल प्रोबेबिलिस्टिक में होता ही नहीं है तो C3 भी नहीं आएगा. तो हमें ना C2 जोड़ना है ना C3 जोड़ना है. तो इस तरह के केस में जब R लेस देन Z हो तो हमें जो कुल लागत समीकरण बनेगी वो संचय लागत या होल्डिंग कॉस्ट के बराबर बनेगी. होल्डिंग कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, जो भी ये डायग्राम में हमारा डॉटेड पार्ट है वो मल्टीप्लाई विद टी. ओके, तो डॉटेड डायग्राम यहाँ कैसा बन रहा है, ट्रेपेजियम जैसा बन रहा है. तो हम क्या करते हैं, रेखांकित भाग इनटू होल्डिंग कॉस्ट इज C1, और ट्रेपेजियम का एरिया हाफ जेड प्लस जेड माइनस आर इंटू टी टाइम है टी इंटू C1. दिस इज द holding cost for that cycle or period t, and this when we solve it comes out C1 z minus half r, t is common so t comes outside, or if it varies up to z because r is less than equal to z, so total expected cost is nothing but summation r equals to 0 to infinity C1 समेशन लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इनिशियल शुरू हो रहा है 0 से z तक. C1 r माइनस हाफ z माइनस हाफ r इंटू टी पी आर, दैट इज डिनोटेड बाई इक्वेशन नंबर 1. सो दिस इज होल्डिंग कॉस्ट फॉर द फर्स्ट केस. नाउ वी कंसिडर द सेकेंड केस when r is greater than z, because here r is in a discrete, so it takes value z, z plus 1, z plus 2 and so on. Okay, so before applying this we are taking the diagram of second case which is here. यहाँ आप देख सकते हैं इनिशियली ओरिजिन से हमारे पास इन्वेंट्री जेड है, और ये जेड टी समय के लिए है, और आर रेट से उठते उठते ये T1 समय में ख़त्म हो जाती है. इसलिए T माइनस T1 समय तक हमारे पास शॉर्टेज रहेगी, और वो शॉर्टेज कितनी रहेगी, आर बड़ा है जेड से इसलिए आर माइनस जेड. अगर छोटा होता तो शॉर्टेज होती ही नहीं. तो ये यहाँ पे कंसेप्ट जो आ रहा है हमारा T1 आ रहा है, जहाँ पे समय स्टोरेज या हमारी इन्वेंट्री ख़त्म हो जाती है, और T माइनस T1 तक हमें शॉर्टेज रहता है. ओके, तो यहाँ जेड इन्वेंट्री है, T1 समय तक हमारा चलता है, T माइनस T1 समय तक शॉर्टेज होता है, और वो R माइनस जेड का होता है. यहाँ पे हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट भी आएगी और शॉर्टेज कॉस्ट भी आएगी इस सेकंड मॉडल में. ओके, सो वी कम टू अगेन हेयर. इस स्थिति में प्रारंभिक तालिका स्तर Z है, जो निरंतर मांग R/T से गिरती हुई समय T1 पर 0 होकर और T माइनस T1 तक शॉर्टेज रहता है. ये हमने डायग्राम से अभी देखा है. यहाँ अभाव R माइनस जेड तक बढ़ता जाता है और फिर हमें वापस सामान अवेलेबल हो जाता है. यहाँ पर जो डायग्राम से हम निकाल रहे हैं वैल्यू, Z is what, R/T into T1. So we can write T1 is equal to ZT upon R. ओके, ये डायग्राम से हमें अगले वाले डायग्राम से दिख रहा है. तो यहाँ पर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, T1 आ गया हमारे पास, T में टर्म्स है, T में है, तो T माइनस T1 हम कैसे निकालें. हम T माइनस T1 सॉल्व कर रहे हैं. T माइनस T1 को हम T माइनस T1 की वैल्यू जो T में दी हुई है, ZT
अपॉन आर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और यहाँ टी कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिल जाएगा आर माइनस जेड इंटू टी अपॉन आर, जो ये सेकेंड इक्वेशन यहाँ दिख रही है, टी माइनस टी वन इज इक्वल्स टू आर माइनस जेड इंटू टी अपॉन आर। ये दो फॉर्मूले हमारे काम में आएंगे, टी माइनस टी वन और ये आगे। ओके, डायग्राम हम देख चुके हैं। अब हम आ रहे हैं हमारी कॉस्ट जो निकालना है इस पर, होल्डिंग कॉस्ट, वही सेकंड डायग्राम का रेखांकित भाग इंटू C1। रेखांकित भाग एक ट्राइंगल है और T1 समय पे एंड हो जाता है, इसलिए हाफ जेड T1 बनेगा और कॉस्ट है C1। यहाँ पर T1 की वैल्यू जो हमने पिछले स्लाइड में ली थी ZT अपॉन आर, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें ये होल्डिंग कॉस्ट मिल जाता है। शॉर्टेज कॉस्ट सेकंड वाले ट्राइंगल में ढूंढेंगे, सेकंड डायग्राम के सेकंड शॉर्टेज T माइनस T1 समय पे जो, तो वो कितना आएगा C2 इंटू हाफ R माइनस जेड तक हमारा वो रहता है लेंथ ट्राइंगल का, और T माइनस T1 समय तक रहता है लेंथ इंटू हाइट, ब्रेथ या बेस जो आप बोलते हो ट्राइंगल के एरिया के लिए। तो ये हमारा सेकंड आ जाएगा। हमने सब मॉडल में इस तरह से पहले किए हुए हैं ये। तो इस तरह से हमने दोनों कॉस्ट निकाली, कुल टोटल एक्सपेक्टेड निकालनी है हमें, तो हम इन दोनों का सम करेंगे, समीशन लगाएंगे। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखनी है, जो ये समीशन लगेगा चूँकि आर डिस्क्रिएट है, पहले वाले केस में जब आर ग्रेटर देन इक्वल टू जेड था, जब शॉर्टेज नहीं थी, तब हम 0 टू जेड ले रहे थे, लेस देन इक्वल टू जेड था। यहाँ ग्रेटर देन है जेड से, तो जेड से ग्रेटर देन चीज़ होगी वो जेड प्लस 1 से स्टार्ट होगी, इसलिए यहाँ समीशन हम जेड प्लस 1 से इन्फिनिटी लेंगे और बाकी इन दोनों को ऐड कर देंगे ए और बी को। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड कॉस्ट आ गई है सेकंड वाले केस की। तो टोटल जो हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट बनेगी वो क्या करेंगे हम, फर्स्ट और सेकंड की ऐड कर देंगे दोनों केसेस की। सो दिस इज़ जेड प्लस 1, रीज़न मैंने बता दिया आपको, आर ग्रेटर देन जेड है इसलिए। यहाँ से जब हम दोनों समीकरणों को ऐड कर दिया हमने, दैट इज़ कॉल्ड हमारी लागत समीकरण कहलाती है ये लागत समीकरण जब हमें मिल जाती है, केस डिस्क्रिएट का है, और डिस्क्रिएट का केस होने पे आपको पता है हम न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस डेल सी जेड माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू सी जेड। और इसमें हम पहले डेल सी जेड निकाल रहे हैं, ये सारी कैलकुलेशन हम पहले भी देख चुके हैं, उसी अकॉर्डिंग करनी है। ये सी जेड की जगह वैल्यू रख कर हम कर सकते हैं, तो हम यहाँ सी जेड निकालेंगे और सी जेड माइनस 1 निकालेंगे। ये सारा काम हम पहले भी कर चुके हैं, उसी तरीके से करना है, तो मैं यहाँ वापस इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये हमने डेल सी जेड बराबर हमारे पास इक्वेशन 7 आ गया। इसी प्रकार डेल सी जेड माइनस 1 निकालेंगे, वो इक्वेशन 8 आ जाएगी, और ये दोनों वैल्यू हम 6 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सी जेड और सी जेड माइनस 1 की, और उसको जब हम सॉल्व करेंगे दोनों एक तरफ लेके, तो हमारे पास जो कंडीशन आ रही है वो ये लास्ट इक्वेशन आती है, उसके बीच में वैल्यू होने पे C2 अपॉन C1 प्लस C2। पिछले मॉडल में भी आपको ध्यान हो तो यही वैल्यू आ रही थी हमारी प्रोबेबिलिस्टिक में, C2 अपॉन C1 प्लस C2। लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी में आप देखेंगे जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के जो टर्म्स हैं उनमें एक तरफ जेड माइनस हाफ आ रहा है, एक तरफ जेड प्लस हाफ आ रहा है। कुछ टर्म्स और ऐड हो गई हैं क्योंकि यहाँ शॉर्टेज भी है। ओके, तो ये टर्म्स के बीच में जब वैल्यू लाई करेंगी वो हमें निकालना है, वही हमारा EOQ होगा। ओके, सो दिस इज़ द मेन हाउ वी फाइंडिंग EOQ फॉर द 4th A मॉडल। ओके, वी आर टेकिंग वन न्यूमेरिकल हेयर। एक सेकेंड हैंड मोटर के प्रति माह ट्रकों की जो मांग दी हुई है, ये दी हुई है अपने को, डिमांड और प्रोबेबिलिटी दी हुई है, आर और PR की वैल्यू, और C1 C2 ये सब कॉस्ट हमको दी हुई है, और ये फार्मूला जो अभी हमने निकाला वो इक्वेशन 1 हमने लिखा हुआ है। ओके, ये जब फार्मूले में हम यहाँ आगे देखेंगे, जो पूरा बड़ा फार्मूला था उसको LZ-1 कह दिया है, तो दोनों तरफ LZ-1 LZ,
वो आना चाहिए हमारा C2/C1 + C2 के बीच में, जहाँ लाई करेगा वो हमारा ऑप्टिमल होगा। जो जो वैल्यू हमें दी हुई है वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। LZ-1 और LZ की वैल्यू 0.909 के बीच में आ रहा है। Z हमें टेबल में दिया हुआ है, PR हमें दिया हुआ है। Z012 ले रहे हैं हम, क्योंकि हमें 012 के बीच में ही वैल्यू आ रही है। तो 012 लिया तो Z+½ का वैल्यू हमें कैलकुलेट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी हमें इसकी कैलकुलेट हो जाएगी, दी हुई है, यहाँ तक की जोड़ लेंगे हम। 0 पे कितनी है, 1 पे कितनी है और 2 पे कितनी है, वो सब टेबल से हम रखते जाएंगे। और यहाँ हम ये वैल्यू निकाल रहे हैं। आगे जो जो हमारी LZ और LZ-1 की वैल्यू थी वो जब हमने रखी, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारी वैल्यू है ये L1 और L2 के बीच में लाई कर रही है। यहाँ देखेंगे आप 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है, क्योंकि आप देखेंगे 0.59 है, फिर 0.86 है, फिर 0.95 है। तो 0.90 जो है वो 0.86 और 0.95 के बीच में लाई करेगा। तो इसलिए हमारा जो ऑप्टिमम ऑर्डर है वो Z=2 होगा। ये इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए ये मॉडल डिस्क्रीट केस लिया है। अब हम अगला मॉडल हमारा, जो कि अगला मॉडल जिसमें हम सारी एज्यूम्शंस वो के वही हैं, सिर्फ जो चेंज होगा हमारा, चेंज है हमारा यहाँ, चेंज है हमारा, हमने जो R को लिया था, R क्या था हमारा, पिछले मॉडल में डिस्क्रीट था। यहाँ पर R हमारा कंटिन्यूस है। जो बड़ा फ़र्क है दोनों मॉडल में वो यही है, जैसा हमने पिछले लेक्चर में भी लिया, थर्ड ए और थर्ड बी, उनमें दोनों में यही फ़र्क था, यहाँ भी वही फ़र्क है। एक में डिस्क्रीट है, एक में कंटिन्यूस है। तो यहाँ हम कंटिन्यूस मॉडल ले रहे हैं, और कंटिन्यूस मॉडल लेते ही आपको ध्यान में आ जाना चाहिए जो हमने पिछले मॉडल में किया था, कि कंटिन्यूस मॉडल में हम समेशन की जगह इंटीग्रेशन और PR की जगह FR/DR काम में लेते हैं। तो जो हमारा पिछला मॉडल जो अभी हमने किया है पिछली स्लाइड्स में, उसी में हम जो हमारी कॉस्ट इक्वेशन है उसमें PR की जगह FR/DR और इंटीग्रेशन की जगह समेशन यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी लागत समीकरण जो ये पहला नंबर पे इक्वेशन दी हुई है वो वाली बन जाएगी इस मॉडल के लिए। उसी तरह का केस है, सिर्फ R कंटिन्यूस है। तो जो हमारा CZ है, यहाँ पे चूँकि ये कंटिन्यूस है, तो हम हमारा पुराना मेथड कैलकुलस मेथड काम में ले सकते हैं। तो हम वही dCZ/dZ को ज़ीरो करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को, और उसको ज़ीरो करके हमें ये इक्वेशन 2 मिलता है। ये सब हम पहले देख चुके हैं, पिछले मॉडल्स में भी देख चुके हैं। ये सब आप आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, कैसे टर्म्स बढ़ेंगी, ये सब काम हम पहले वाले मॉडल थर्ड ए और बी में कर चुके हैं। वही काम यहाँ दोबारा कर रहे हैं। यहाँ टर्म ज़्यादा हो गई है तो दो बार हो जाएगा, और ज़्यादा चेंज नहीं है, उसी तरह से है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 जो है वो EOQ का आ रहा है, पर हमको चेक करना है क्या इस पर डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जब हमने यहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएट किया इसको d2CZ/dt²dz², तो हमने देखा कि ये जो क्वांटिटी आ रही है हमारी वो पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, और इसलिए जो हमारा ये इक्वेशन 2 है वो हमारा न्यूनतम होने के कारण EOQ बन जाएगा। तो ये हमारा एक तरह से फोर्थ बी वाले मॉडल का EOQ बन गया है। बिल्कुल सिंपल है, दोनों मॉडल में सिर्फ आपको ध्यान इतना सा रखना है, लैंग्वेज में जब मॉडल डेराइव के लिए दिया हो तो आपको R कंटिन्यूस दिया हुआ है या डिस्क्रीट दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कंटिन्यूस है तो आपको सारे पुराने मेथड और समेशन की जगह इंटीग्रल लगाना है, और PR की जगह FR/DR वही मेथड है, दोनों रिपीट हो रहे हैं एक तरह से, सिर्फ समेशन और इंटीग्रल में चेंज हो रहा है। ओके, तो ये हम आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद एक इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम। यहाँ भी एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कंटिन्यूस FR को डिफाइन किया हुआ है।
जब R लाइज बिटवीन 0 से 10 है और 10 के अलावा 0 रहता है, उसकी डिमांड जो है वो 0.1 है और C1 C2 का वैल्यू हमें डिफ़ाइन किया हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये सब वैल्यू जो दिया हुआ है हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सारी वैल्यूज़ जो फॉर्मूले में हम रख रहे हैं और वही C2/C1 प्लस C2 इस वाले इक्वेशन में, जो ये पहला समीकरण जो हमारा था, ये इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे दो इंटीग्रल ऐड होके हमारे पास आ रहा है C2/C1 प्लस C2, क्योंकि यहाँ टर्म ज़्यादा बन रही है z माइनस हाफ z प्लस हाफ वाली, तो यहाँ दो टर्म बन रही हैं ये, तो ये यहाँ भी हमारी फॉर्मूले में भी दो टर्म हम ले रहे हैं। ये तीसरी लाइन में आप देख रहे होंगे, दोनों में हमने वैल्यू रखी, ये आ रहा है 8/10 वैल्यू दी हुई है, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये log z में आ रहा है इक्वेशन, और ट्रायल एंड एरर मेथड या न्यूमेरिकल मेथड को यूज़ करके जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो z की वैल्यू 4.5 आती है। इस तरीके से हम ये इन्वेंट्री के क्वेश्चन कर सकते हैं, EOQ निकाल सकते हैं। हमने सब तरह के मॉडल यहाँ पे करने की कोशिश की है, सब तरह के मॉडल भी करा दिए हैं। तो आज हमारा इन्वेंट्री का ये चैप्टर फिनिश होता है। इसके न्यूमेरिकल और ये आप क्वेश्चन बुक से कर सकते हैं, 2-3 बुक में देखेंगे तो सब कहीं ना कहीं अवेलेबल होंगे, और फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखनी है, सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।